हाँ जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन. Please confirm. Am I audible to all? Am I audible? Okay. ठीक है जी. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ. ठीक है. इसलिए ये नहीं सोचना कि सोनू अपने आप पढ़ना. हाँ, जी चीज खुद पढ़नी है वो भी मैं सोनू दसूंगा कि हाँ ये खुद पढ़नी है, इन्हों इत्थों पढ़ लो. क्लियर है. सो डोंट वरी अबाउट द सोर्सेज, डोंट वरी अबाउट कि असी वो क्लास कवर करांगे या नहीं करांगे. ठीक है. वो मेरी हेडेक है कि मैं किस तरह कवर करवाना है. क्लियर. ओके. तो चलो यार, एक तो अपडेशंस की गल सी, तो सब तो पहला तो अपडेशंस कर लिए. ठीक है, वो जरूरी है. ਤਾਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਅੱਜ. ਓਕੇ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ. ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 2019 ਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2015 ਵਾਲੀ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕਲੀਅਰ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋर्ट. क्लियर. 2019. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 3084 ਸਕੁਆयर किलोमीटर. ठीक है. फॉरेस्ट एरिया 3084 है. 2400 समथिंग 2442 शायद ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ठीक. ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, it is not 4 point something, it is now 6.12%. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਏ ਦਾ 6.12% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਏ ਦਾ 6.12% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਠੀਕ. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 0.4% ਆਫ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ. ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ 6.12 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 0.4% ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ 0.4% ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 1.43%. ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 36%. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਕਲਾਸਡ ਨੇ, ਅਨਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਨਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਨਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਅਨਕਲਾਸਡ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, 4 ਨੇ रखसराय, अमानत खान, रखसराय अमानत खान, ठीक है, कंजरवेशन रिजर्व है। हुण ये है कि है, ये अमृतसर दे विच है, अमृतसर दे विच है, और इहदा एरिया जिहड़ा है करीब करीब 1223 एकड़ है। रखसराय अमानत खान अमृतसर दे विच है, 1223 एकड़ दी जमीन है। और इनू कदों बनाया गया सी कंजरवेशन रिजर्व, तुहाडा 2010 दे विच है, ठीक, 2010 दे विच इनू कंजरवेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और उस तो बाद दूजा जिहड़ा कंजरवेशन रिजर्व है वो हैगा तुहाडा रोपड़ वैटलैंड। रोपड़ वैटलैंड की है जी, ये रोपड़ दे विच है, और जिहड़ा इहदा एरिया है दैट इज अराउंड 521 एकड़स, ठीक है, 521 एकड़ दे विच है। और इहनू कदों डिक्लेयर किया गया, 2017 दे विच है, ठीक, 2017 दे विच इहनू डिक्लेयर किया गया। हुण अगर अगे देखते हैं, नैक्सट जिहड़ा है वो है साडा रणजीत सागर डैम। तीजा किहड़ा जी, रणजीत सागर जिहड़ा है डैम है रिजर्व। हुण ये है कित्थे है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच है। और इसका जिहड़ा एरिया दिखांदा है वो कितना कहंदा जी, करीब करीब 4550 4559 एकड़स है। और इनू कदों डिक्लेयर किया गया, 2017 दे विच ही, ठीक है, रणजीत सागर डैम जिहड़ा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जिहड़ा है दैट इज ब्यास रिवर रिजर्व। ब्यास रिवर रिजर्व, ठीक। और अगेन ये की है जी, मैं तुहानू दस्सिया ही है, ये कित्थे तो है जी, ये तलवाड़े तो लैके टू हरीके पत्तन तक है। मतलब वही पूरी पूरी जिहड़ी साडी असी गल कीती है ना इसकी, ठीक है ना, ब्यास रिवर जिहड़ा साडा नवा ही इहनू वो भी बनाया इंटरनेशनल वैटलैंड जिहड़ा है डिक्लेयर किया है। तो ये तलवारे तो लैके हरीके पत्तन तक दी इहदी सारी लेंथ दे उत्ते है। और इहनू कदों रिजर्व डिक्लेयर किया गया सी, देखो इहनू कंजरवेशन रिजर्व 2017 च डिक्लेयर किया, और इहनू रामसर जिहड़ी साइट है वो 2020 च डिक्लेयर किया। क्लीयर, हुण देखो अगे। और इस दे नाल ही ये जिहड़ी ब्यास रिवर है ना, एक चीज होर तुहाडे लई ऐड कर रहे हैं इत्थे, जिहड़ी ये ब्यास रिवर है इनू स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, लिख लो, इस रिवर नू स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 2019 दे विच हैरीटेज रिवर दा टैग दिता सी। ब्यास रिवर नू 2019 दे विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इन्हें हैरीटेज रिवर का टैग दिता, और ये इकलौती हैरीटेज रिवर है साडी। क्लीयर है जी। हुण अगे चलते हैं, इस तो बाद अगर असी गल करते हैं कम्यूनिटी रिजर्व्स दी है, तो कम्यूनिटी जिहड़े रिजर्व है मैं तुहानू उस दिन भी दस्सिया सी कि कम्यूनिटी रिजर्व हुंदे की है, ठीक है, उस दे उत्ते असीं गल नहीं करांगे। और इहदे विचों दो तो आपां ऑलरेडी कीते हुए है, लालवान, ठीक है, लालवान कम्यूनिटी रिजर्व है जिहड़ा, और दूजा की है जी केशोपुर, इहदे बारे भी गल कीती हुई है, केशोपुर चंब, ठीक, ये दो ने, ये तो असीं गल कीती हुई है
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਗੁਮਜਲ, ਹਰੀपुरा, इकट्ठा ही है, दीवान खेड़ा, ठीक है रिजर्व। ये मतलब क्या है, देखो पिंडा के नाम लिखते भी ये सारे पिंडा नूं मिला के इन्हां दे सारियां दे एरियाज विच आए ने, ओहदे विचों बनिया। और ये कित्थे है जी तुहाडा, ये फाजिलका डिस्ट्रिक्ट दे विच है, ठीक। और इहदा जिहड़ा एरिया है वो करीब करीब आ है, ठीक है। आप ही आना 1 2 3 4 4 5 पिंडा की थां जिहड़ी हैगी है, तां यह तुहाडा दिखा किन्ना रहा है 16,800 एकड़ के करीब करीब ये तुहाडा रिजर्व जिहड़ा है शो हुंदा है। और इनू कदों डिक्लेयर किया गया, 2015 दे विच इनू कम्यूनिटी रिजर्व जिहड़ा है डिक्लेयर किया गया जी। हुण ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ना इस चो कोई मतलब नहीं है कि पंजाब सरकार किन्ना कहती है किन्ना ना, क्यों साडे कोल ना एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। हुण जे कल नूं किसी का क्वेश्चन गलत भी कर दे, होना ही नहीं पहली गल तां, ठीक है ना। पर की हुंदा ऑथेंटिक सोर्स जो साडे कोल हुंदा, किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट, असीं किते किताब नूं ऑथेंटिक सोर्स नहीं मान सकते, पहली गल, ठीक है। किसी सरकारी रिपोर्ट नूं ऑथेंटिकेट मान सकते हैं, उस दे बेसिस दे उत्ते अगर असीं कोई एक्शन लेना होवे तां लै सकते हैं, समझ गए। तां इह इसलिए आपां इह रिपोर्ट चक्की है। नैक्सट है जी तुहाडा सिसवान कम्यूनिटी रिजर्व, सिसवान। हुण ये सिसवान की है, SAS नगर दे विच है, डिस्ट्रिक्ट SAS नगर मतलब मोहाली वाला। करीब करीब 3200 एकड़ की इत्थे कह रहा है 2017 दे विच डिक्लेयर किया गया, ठीक है, 2017 दे विच। हुण यार पन्नीवाला गुमजल, GUMJAL गुमजल, ठीक। हाँ एक चीज देखो, हुण ना सोनू ये पता लग गया ये कम्यूनिटी रिजर्व है, ठीक है। सोनू ये भी पता लग गया ये कंजरवेशन रिजर्व ने, ठीक। सोडे लेवल ते जिहड़ा काम है, जिहड़ा तुसीं करना है, तुहाडे लेवल दा काम है किहड़े मिनिस्ट्री इनू डिक्लेयर करदी है, किहड़ी बॉडी या किहड़ी मिनिस्ट्री, ठीक है, इनू डिक्लेयर करदी है, ठीक। और क्वेश्चन की बन सकता है कि ये जिहड़े कम्यूनिटी रिजर्व है या कंजरवेशन रिजर्व ने किस एक्ट के अंडर आउंदे ने। These all community, all conservation reserves falls under Wildlife Protection Act. They all has been declared under Wildlife Protection Act 1972, ठीक है। ऐड कर लो। और ये क्वेश्चन जिहड़ा है, ये क्वेश्चन जदों भी आऊगा तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है तुहानूं पूछा जाऊगा कि किहड़े एक्ट के अंडर बने है रिजर्व, ठीक है। तो ये जिहड़े रिजर्व है ये बने ने तुहाडे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है पैन इंडिया के उत्ते काम करता है, ठीक। हुण लो जी, ये तां सीगियां तुहाडीआं अपडेशनस के कौन की है कित्थे की नहीं है, ठीक है। जिहड़ा कि आपां नूं थोड़ा जिहा डाउट सी, मैनूं भी डाउट सी, इसे करके आपां भी इनू चेक किया। हुण चलदे हैं यार, हुण गल करदे हैं तुहाडी हिस्टरी दी। अच्छा
एक चीज ध्यान रखियो यार, हुण एक चीज ध्यान रखियो प्लीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है यार, ठीक है। ਜਦੋਂ मैं हिस्टरी की गल कर रहा ना, तो मैं हिस्टरी मेरे तो एक्सपैक्ट ना करो कि मैं जी सारी हिस्टरी पढ़ानी है कि जेड़ा हिस्टरी का एक टॉपिक पूरा पढ़ावा। गेटिंग माई पॉइंट? मैं पंजाब परस्पैक्टिव तो पंजाब स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड होगा, अगर मैं गलूगा मैं किसी भी दिल्ली सल्टनेट्स की गल कर रहा है ना, दिल्ली सल्टनेट्स की, तो उथे मैं दिल्ली सल्टनेट्स का कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखवाऊंगा कि हाँ इन्हें ये बनाया, इन्हें ये बनाया, इन्हें ये बनाया। रीजन बीइंग वो तो हिस्टरी का पार्ट है, ठीक है। और जो इत्थे हिस्टरी की गल करांगे, असी गल करांगे पंजाब स्पेसिफिक हिस्टरी की, पंजाब की हिस्टरी, पंजाब के गुरुओं की गल करांगे, पंजाब की अगे जिहड़ी मॉडर्न हिस्टरी है, पंजाब की मिडीवियल हिस्टरी है, उहदे ते उत्ते असी फोकस करांगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो उत्थे कहने का मतलब वो इवेंट्स जिहड़े है वो नहीं मिस होने चाहिए। दिल्ली सल्टनेट ने की किया, गुप्ताज ने की किया एंड ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, ठीक। वन थिंग ये बड़ा क्लीयर होना चाहिए, ठीक है ना। हुण हाँ, मेरी इकोनॉमी च बारी आनी है जो, तो मैं इकोनॉमी सारी पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। तो हुण की है, असी हिस्टरी स्टार्ट करते हैं यार, तो हिस्टरी नूं ना 3 हिस्सों च वंड दिता जाता है। एंशिएंट हिस्टरी है, मिडीवियल हिस्टरी है, ते मॉडर्न है। एंशिएंट, मिडीवियल ते मॉडर्न हिस्टरी है, ठीक है। हुण जदों मैं गल करदा है मिडीवियल या मॉडर्न, ये तो मोर और लेस साने सुनिया हुई ने, सानू इवेंट्स ना पता होण पर साने कहानियां सुनिया हुई ने। मिडीवियल च असीं की कह दिंदे हैं, गुरु काल जिहड़ा असीं ना मतलब जिथों गुरु शुरू हो जाते हैं, असीं वो सारी हिस्टरी नूं मिडीवियल च रख लैंदे हैं, ठीक है। तो एंशिएंट असीं पिछले टाइम के विच जाने हैं, क्लीयर। और मॉडर्न जिहड़ी है, मॉडर्न मेनली असीं ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जिहड़ी साडी स्ट्रगल है, ठीक है ना, असीं ओनू की है जी, ओनू मॉडर्न च मान लैंदे हैं। हुण देखो यार, किसी भी स्टेट का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी जगह का जिहड़ा कल्चर है ना, वो एवें नहीं बन जाता। उसके पिछे बहुत वड्डे रीजन होंदे है, तुहाडी पूरी हिस्टरी होंदी है, ठीक है, पूरी हिस्टरी की गल होंदी है। अज मैं तुहाडे नाल जदों डिस्कस करूंगा तो अज ना एक चीज़ बहुत जिहड़ा अज दे टॉपिक च मैं मेन मन के चलदा है, जिहड़ा साडा सरहंद है ना, सरहिंद जिहदे पिछे मतलब लड़ाई हुई है, छोटे साहिबजादियां दी जिहड़ी है नीहां चनवाए गए है। सरहिंद जिहड़ा है अज सानू लगदा है कि यार पटियाले दे नाल लगदा एरिया है या चंडीगढ़ दे नाल लगदे एरियाज ने, इन्हां दी इंपॉर्टेंस जिहड़ी है, ठीक है, कि क्यों इत्थे इन्ना कुछ होया, ठीक है, क्यों एक पूरा दा पूरी लड़ाई दा पूरा मुद्दा बनया इत्थे, ये सारियां चीज़ां सरहिंद की इंपॉर्टेंस जिहड़ी है, हो सकता अज मैं ट्राई करूँगा क्लीयर करने की कि यार की सी, ठीक है। हुण सब तो पहला ना जो असीं हिस्टरी की गल करते हैं यार, तो हिस्टरी दे विच जदों मैं शुरू करदा ना, तो असीं प्री हिस्टोरिक एरा तो शुरू करते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा, ठीक है। हुण जिहड़ा प्री हिस्टोरिक एरा है, एंशिएंट दे विच जा रहे हैं असीं, ठीक है, मिडीवियल मॉडर्न बाद विच आउणगियां। तो हिस्टरी दे विच सब तो पहला मैं जा रहा जी प्री हिस्टोरिक। हुण ना यार जिहड़ा आ प्री हिस्टोरिक एरा है, ये तुहाडा एरा 3 हिस्सों च वंडिया हुआ है, ठीक है, 3 हिस्सों में। तो हुण जिहड़ा देखो, एक हैगा जी तुहाडा पैलियोलिथिक एरा। पैलियोलिथिक एरा ये सब तो पहला जिहड़ा असीं कह दिंदे आ एरा सी। उस तो बाद मेसोलिथिक,
और नियोलिथिक। तीन तुहाडे एराज ने, पालियोलिथिक है, मेजोलिथिक है एंड नियोलिथिक है। हुण देखो यार, ये जिहड़े एराज की गल है ना, फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड, पैलियोलिथिक एरा की गल करते हैं, ये बहुत ही पुराना टाइम है, बहुत ही पुराना, अराउंड 2.5 लाख जिहड़ा BC पुराना, ठीक है। मतलब जो साडे कोले कुछ भी नहीं हुंदा सी। देखो यार पहला की है, अगर तुसी ना ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ो कदे भी, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो दसा जाता ना कि जिहड़ा इंसान है बांदर दी जाती है, बांदर नहीं मतलब एप्स जिहड़े है, ठीक है, एप्स जिहड़े है वो एप्स की जिहड़ी साडी फैमिली है, असी ओनू बिलोंग करते हैं, ठीक। असी हौली 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 डेवलप होके असी अज की स्थिति च पहुंचे हैं। ते हुण अगर आ सब तो पहला एरा की गल करते हैं, पैलियोलिथिक एरा, तो यह वो एरा सी जदों असी हले ना जिवें कहंदे वो जिहड़े एप्स की जिहड़ी असी गल करते हैं उन्हां तो डेवलप होना शुरू होने हैं, असी डेवलप होना शुरू होने हैं। हले कुछ नहीं है, कल्ले साडे कोले पत्थर है, ठीक। असी लोग साडे कोले पत्थर है और असी पत्थर नाल की है जी, असी ओदे नाल ही शिकार करते हैं और ओदे नाल ही असी सारा कुछ देख रहे हैं। मैं ना पहला स्टोरी दसूंगा, उस तो बाद जिहड़ा कुछ लिखाना होगा मैं तुहानूं लिखाऊंगा। साडे कोले कुछ नहीं है, स्टोन्स है ना, किते रहण दा, और उस टाइम ते की सी, असी जंगलां च रह रहे हैं, एक जगह तो दूजी जगह, दूजी तो तीजी, तीजी तो चौथी, मतलब असी साडा कोई परमानेंट वसेरा ही है नहीं, वसेवा है नहीं, परमानेंट कोई टिकाना नहीं है, ठीक। ये चीज होंदी है। इस तो बाद अगला पीरियड आंदा है साडा मेसोलिथिक दा, ठीक है। ये जिहड़ा मेसोलिथिक पीरियड है, इस पीरियड दे विच की हुंदा है, असी ना थोड़े जे डेवलप हो गए, थोड़े जे डेवलप की होए कि जिहड़ी स्टोन सी, असी पहला वड्डे वड्डे पत्थरां नाल मारदे सी जानवरां नूं, या साडे कोले स्टोन टूल सी, सानू ना अकल आ गई, असी वो जिहड़े पत्थर सी उन्हां नूं घड़न लग गए, तिखा करन लग गए, ते वो ना छोटे बना ले। सानू पता लग्या कि वड्डे पत्थर तो भी वधिया काम, जे तेज भाला होगा ना पत्थर दा, तेज नुकीला पत्थर, वो ज्यादा वधिया काम कर सकदा, ठीक है। तो असी लोग की, असी की कीता, पत्थरां नूं डेवलप करके असी ना नुकीले छोटे छोटे हथियार बना ले, ठीक। ये साडा मेसोलिथिक दा एरा आ गया, मिडल। उस तो बाद हुण की आंदा, असी नियोलिथिक दे विच चले जाने हैं। ये वो एरा है, नियोलिथिक जिहड़ा एरा है, हुण जाके इंसान जिहड़ा है एग्रीकल्चर डेवलप करदा है, ठीक। एग्रीकल्चर डेवलप करदा है, इंसान अग जिहड़ी है, ठीक, अग की भाल करदा, मतलब उहनूं अग की इन्वेंशन हुंदी है, पता लगदा है कि अग। हुण तुहानूं मैं एक चीज दसदा, इंसान जिहड़ा है पहली बार जदों अराउंड 10,000 BC जदों इंसान ने अग की भाल की है ना, अग लभी है, उस जगह ते जाके इंसान नूं 10,000 BC दे विच की है पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट होंदा है। हुण इत्थों ध्यान रखियो, 10,000 BC दे विच जाके पहली बार एग्रीकल्चर जदों तुहाडा स्टार्ट होंदा है, तां हुण की है, पहला मैं तुरया फिरदा जी हर जगह ते, ठीक है, मेरा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है और मैं बस लभ रहे हैं, फूड गैदरर्स हैं असी, ते जिथे जा रहे हैं ले आए, खा लिया, जिवें भी रह लिया। असी एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तां तुहानूं एक चीज़ का पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर ने बंदे नूं बन्नता। किवें बन्नता सुनो, और बंदे दी सारा 10,000 BC जिहड़ा है ना, ये वो टाइम है जदों ह्यूमन डेवलपमेंट नूं असीं वाटरशेड मूवमेंट कहते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाता साडा नियोलिथिक दे विच। किवें? तुसीं जदों एग्रीकल्चर करन लागे तां सोनू एक जमीन चाहिदी है, ठीक है। वो जमीन दे उत्ते तुसीं बीज बो रहे हो तां सोनू उस बीज दी परमानेंट देखभाल करनी पैनी है। इसलिए तुसीं जदों उस बीज की परमानेंट देखभाल करनी है, वो फसल की देखभाल करनी है, तां सोनू वो एरिए दे आले दुआले नेड़े तेड़े रहना भी पैना है, ठीक है। अदरवाइज की है,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਹਿ ਲੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਸੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, अच्छा मैं वैसे उस इन डेप्थ नहीं जाऊंगा है ना, वी ऑल आर, जिन्ने भी इस दुनिया दे विच बंदे मिलते हैं ना इस टाइम, हैगे तो असीं सारे जानवर है, ठीक है, जानवर ही है, मतलब यार सारे जानवर होंदे हैं, इट्स नॉट इन द नेगेटिव कंटेक्स्ट, वी ऑल आर होमोसेपियंस। ठीक है, और असीं कित्थे बने सी शुरू च, साडा जिहड़े एंसेस्टर्स सी ना वो सीगे अफ्रीकनस, अफ्रीका जिहड़ा कि सदर्न अफ्रीका है, ठीक है, उस जगह दे उत्ते असीं होमोसेपियन पहली बार दुनिया च आए सी। ठीक है, और उस तो बाद जिवें हुण देखो बिल्लियां दी कितनी प्रजातियां ने, टाइगर है, लायन है, ठीक है ना, लेपर्ड है एंड ऑल, ये सारे बिल्ली की प्रजाति च आई। ह्यूमन की प्रजाति च भी बहुत लोग सी, ठीक है, होमोसेपियन सी, होमो निएंडरथाल सी एंड ऑल, बहुत सारे लोग सी, सारे खत्म हो गए, असीं होमोसेपियंस रह गए हैं। तो होमोसेपियंस ने ही अगे डेवलप किया ये एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों असीं डेवलप किया, सानूं एक जगह ते रहना पै गया, एक जगह ते रहन करके असीं हौली 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 उत्थे इकट्ठे होण लग गए। हुण सुणो, एक जगह ते इकट्ठे होण लगे, हुण यार तुहानूं एग्रीकल्चर वास्ते पानी की भी लोड़ है, एक परमानेंट पानी के सोर्स की भी लोड़ है ना, सुक्की जगह ते तां होनी नहीं, ठीक है, जमीन ते। तां असीं की कीता, साडी जिहड़ी लाइफ है ओह जिहड़ी पहला वेंडरर सी, हुण एक स्टिल जी लाइफ होगी, स्थिर जी लाइफ होगी, असीं पानियां दी भाल दे विच ओहदे आले दुआले रहन लग गए, ओहदे उत्थों ते असीं लभण लगे। ठीक है, तां हुण की हुंदा है, आ जिहड़ा नियोलिथिक एरा है इहदे विच सानूं अकल आ गई, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, एग्रीकल्चर दे नाल हुण सानूं अग दी भी लोड़ सी। ठीक है, क्यों, जानवर जिहड़े सीगे असीं उन्हां नूं दूर भी रखना है, असीं आप भी जिहड़ा है सानूं लोड़ है, क्यों, एग्रीकल्चर है। हुण सोने खाण पीण नूं पकाना भी तो है, पहला तुसीं कच्चा मांस खा रहे सी, पर हुण तुसीं कच्चे दाणे नहीं खा सकदे, ठीक, तां तुहानूं अग दी लोड़ पई, अग नाल तुसीं रोटी, मतलब कुछ भी, उदों रोटियां नहीं, जो कुछ भी तुहाडा सी तुसीं उहनूं पका के खाण लगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आंदा है, अग आंदी है। दूजा, क्योंकि असी डेवलप हो रहे सी, साडा ब्रेन है ना जिहड़ा ये डेवलप हो रहा सी, डेवलप हुण जदों ब्रेन डेवलप होया, इत्थे असी छोटे छोटे टूल बनाए। ठीक है, आले पीरियड दे विच आके असी उन्हां नूं होर डेवलप किया, होर नुकीला किया, पॉलिश्ड कीते, ठीक है, उन्हां दा ग्रिप वधिया किया, सारा कुछ बनाया, बन गया जी। हुण इस तो बाद अगे डेवलप हुंदे हैं, इस तो बाद साडा अगला आंदा प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक फेज इत्थों ही चलदा मैं, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब नियोलिथिक तो ना अगे मान के चलो। ठीक है, इत्थों असीं प्रोटो हिस्टोरिक ते आ गए, और प्रोटो हिस्टोरिक जिहड़ा है इहदे विच इहनूं की कहा जांदा जी, ब्रॉन्ज एज। इत्थे साडे कोले पत्थर सी। ठीक है, हुण असी होर अगे आ गए, ते ये जिहड़ा पत्थर है साने मैटल की इन्वेंशन की, मैटल की, कॉपर। ठीक है, कॉपर तो असी की है जी ओदा मिक्सचर बनाया ब्रॉन्ज। ठीक, मैटेलिक एज जिहड़ी है, मैटेलिक एज, ये इत्थों साडी की है जी मैटल एज या मैटेलिक एज शुरू होंदी है। क्लीयर, हुण की होया, मैटेलिक एज शुरू हो गई है, इत्थे सोने एग्रीकल्चर डेवलप कर लिया है। ठीक है, और एग्रीकल्चर डेवलप किया है, हुण सोनू पानी की लोड़ है, और इसे करके ही
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा, मोहनजोदड़ो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਕਨਿਓ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਕਨਿਓ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਆਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੰਬਸ ਐਂਡ ਆਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਔਰ 2500 BC ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੜੱਪਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੜੱਪਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, खेती भी हो रही है, उत्थे हो रही है, ठीक है, इस करके, और नदी है, नदी पूरा सोर्स है, जिथे मर्जी घूम लो। तो इथों तुहाडा जिहड़ा सिटी कल्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। इत्थे तक सिटी नहीं सी, कुछ नहीं सी, इत्थे सिर्फ और सिर्फ लोग रह रहे सी और कुछ नहीं सी, भीड़ सीगी लोकां दी। और इस तो बाद इत्थे आंदे ने तुहाडा जिहड़ा सिटीज है, जिहड़ी हड़प्पा जे मोहनजोदड़ो जिहड़ियां वड्डियां सिटीज है, प्लांट सिटीज है, वो स्टार्ट हो, समझ गए। और क्योंकि सिटी कल्चर डेवलप हो गया, बहुत अगे आ गए हुण असीं इन्हां तो, ठीक है, 10,000 BC तो सीधा असीं हुण 2500 BC की गल कर रहे हैं। तो सिटी कल्चर डेवलप हो गया। सिटी कल्चर के डेवलपमेंट के नाल साडे कोल की है जी, मैटल है, ठीक है। हुण ये जिहड़ी मैटल है, इस मैटल तो असीं हथियार भी बनाए, ये मैटल तो असीं गहने भी बनाए, ਇਹ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਰਲਡ ਮੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ, इंडस रिवर के कंढे ते आके रहन लग गए। हुण की है इधरों ईरान वाले पासे, इराक वाले पासे, अफगानिस्तान वाले पासे, क्योंकि अफ्रीका तो लोग आ रहे सी, इत्थे तां है ही सी, तां हुण ओह लोग भी जिहड़े हैगे ने ओह भी अगे होर फर्दर आन लग गए लोग, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सी, ये बहुत सारी डेवलप हो गई, बहुत वधिया चल रही है, फ्लोरिश कर रही है, सब कुछ कर रही है। ते हुण जिहड़े साडे ईरान, इराक, अफगानिस्तान जिहड़ा ये सोडा एरिया है, इत्थों जिहड़े लोग सी ये आउंदे ने तुहाडे इंडस रिवर कनी, ठीक। और इन्हां नूं की कहा गया जी, आर्यंस, ठीक है, दे बिलोंग टू आर्यन रेस। हुण
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो अज तक नहीं पता किसी को कि की होया की नहीं होया, बट मन्निया की जाता है कि जेडे आर्यन सी, आर्यन की लड़ाई होंदी है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिहड़ी है ओनू वो तबाह कर देंगे हैं। किवें? ये लोग सी अब हुणे लोग आ रहे हैं इंडस वैली दे विच, लोग बसे हुए ने, इन्हां दी लड़ाई हुई है या कुछ भी होया है और इन्हां लोकां ने आके उत्थे कब्जा कर लिया, ठीक है। हुण जदों उत्थे कब्जा किया, अलग अलग थ्योरीज है, कोई कहते हैं कि जेडे आर्यन लोग ने ये दो गुटां दे विच आए ने, दो झुंडां दे विच, ठीक है। पहला झुंड आया और ओह की है जी, आंदा आंदा सारी इंडस वैली क्रॉस करके गंगेज वैली तक, मतलब कित्थे तुहाडे बिहार का जिहड़ा अज दा एरिया है, MP का एरिया है, उत्थे तक पहुंच गया, ठीक। उत्थे उन्होंने परमानेंट बसेरा ला लिया और उसदे फिर जिहड़ा दूजा ग्रुप आया वो उन्ना जिहड़ा वो एरिया सी उहदे आले दुआले आके बसन लग गया, ठीक है। ये ग्रुप मतलब थ्योरीज है और कहते जिहड़ियां तुहाडीआं भाषावां भी डेवलप होईयां ने ना, वो सारियां दी सारियां भाषावां इस हिसाब नाल डेवलप होईयां ने। एक अंदरले रीजन दी भाषावां ने जिहड़े अंदर लोग रहिंदे सी, एक बाहरले रीजन दी भाषावां ने जिहड़े बाहर लोग रहिंदे सी, ठीक। चलो वो भाषा तो आपां नूं कुछ नहीं लेना देना। हुण की है, आर्यनस आंदे आ और आर्यनस आके आ जेडे इंडस वैली दे जेडे लोग ने इन्हां नूं हरा दिंदे आ। हुण ये जेडे आर्यन सी, क्योंकि ये इधरों भी कबीलियां च रहिंदे सी, तां इन्हां नूं ना शहरां च रहण दी आदत है नहीं, शहरां च रहण दी आदत है नहीं, तां इन्हां ने आके इत्थे विलेज कल्चर जिहड़ा है, विलेजिस, ठीक है, छोटे छोटे मतलब विलेज चंक्स दे विच, ये सिटीज दे विच नहीं रहे, ये विलेजिस दे विच आके रहन लग गए, ठीक है। सिटीज नालों छोटे एरियाज वो कहांगे, ठीक है। हुण जदों आर्यन आके रहन लगे तो तुहानूं पता है उस तो बाद हुण देखो ये सारा एरिया अगर असीं देखीए ना, ये पंजाब दे एरिया ही मेन है, इत्थे पंजाब दा एरिया ही तो एंट्री पॉइंट है साडा, होर किहड़ा एरिया है, ठीक है। ये सारा दा सारा एरिया पंजाब दा ही एरिया सी, क्लीयर। हुण आर्यन आके रहिंदे आ, हुण तुहानूं पता है कि जिहड़े आर्यनस है वो अगे असीं सारे डेवलप हुंदे हुंदे असीं रामायण भी लिखी, महाभारत भी लिखिया, सारे धर्म ग्रंथ लिखे, ठीक, असीं वेद लिखे सारे इत्थे ही, ठीक है। और मन्निया जाता कि जिहड़ा तुहाडा ऋग्वेद एंड ऑल ये सारे तुहाडी जिहड़ी रावी एंड ये जिहड़ियां नदियां ने, ठीक है, इन्हां दे कंढियां ते बह के लिखे गए ने, ठीक। हुण आर्यनस आंदे आ, विलेज कल्चर डेवलप होंदा जी और तुहाडे ना छोटे 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 राष्ट्र बनते हैं, राष्ट्र समझ गए, राष्ट्र इन द सेंस कि कबीलियां नूं कह लो, ठीक है, कबीले थोड़े थोड़े बड़े 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 होंदे गए तो वो की है जी एक असीं कहने हैं राष्ट्र उस लैवल दे छोटे छोटे, ठीक, वो बन गए। हुण आर्यनस रहिंदे सी, बहुत सुखी रह रहे हैं जी, सारा कुछ रह रहा है। हुण जदों आर्यनस रहिंदे आ, इस तो बाद जिहड़ा हुंदा है फॉरन इन्वेजन्स स्टार्ट हो जांदियां ने, फॉरनर्स जिहड़े हैगे ने फॉरनर इन्वेजन कर रहे ने वो स्टार्ट हो जांदियां ने। हुण वो जिहड़े फॉरन इन्वेजन है उस दे विच सब तो पहला जिहड़ी इन्वेजन है दैट इज ऑफ पर्शियंस। ये पर्शियंस जिहड़े है ये स्टार्ट करदे आ। हुण इन्हां चों एक बंदा सी जिहदा नाम सी डेरियस, DARIUS, डेरियस। उन्हें डेरियस आंदा है और ये डेरियस आंदा है तां उस तो बाद उहदे फर्दर जिहड़े डिसेंडेंट्स है वो आंदे आ, तां ये जिहड़ा ना पंजाब दा, क्योंकि एंट्री मैं तुहानूं दस्सिया कि एंट्री पॉइंट यही सी, तां इधरले एरिया ते ना कब्जा कर लैंदे आ, ठीक है। और पर्शियन जिहड़ा है तुहाडा शुरू हो जाता है राज पंजाब के एरिए च। असीं पंजाब की गल कर रहे हैं, इंडिया की मैं गल नहीं कर रहा। हुण 321 BC केड़ा टाइम आ जाता है जी, पर्शियंस तो अगे चलते हैं, ठीक है। पर्शियंस तो अगे 321 BC दे विच की हुंदा है, ग्रीक्स आ जाते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर 321 BC दे विच अलेक्जेंडर जिहड़ा है ये पर्शिया दे उत्ते अटैक कर दिंदा है, ठीक है। और पर्शिया के उत्ते अटैक करता है तो पर्शिया नू कैप्चर कर लेंदा है और पर्शिया नू कैप्चर करन तो बाद ये अलेक्जेंडर जिहड़ा है ये इंडिया वाल नू मूव करदा है। क्यों? उन्हां दी लास्ट अंपायर जिहड़ी सी पर्शिया अंपायर दी जिहड़ा लास्ट एरिया सी वो साडा ओही पंजाब दा एरिया सी जिहदे उत्ते उन्हां दा कब्जा सी, ठीक है। हुण अलेक्जेंडर आंदा है और ओह
पर्शियंस नूं इथों कढ़ दिंदा बाहर, कढ़ता जी। हुण जिहड़ा है अलेक्जेंडर, ठीक है, ये बंदा दो सिटीज बनांदा है इंडस रिवर के नेड़े तेड़े, दो जेलम रिवर के नेड़े तेड़े, ठीक है। पहली गल तो अलेक्जेंडर आंदा, एक होर चीज हुण मैं दसदा, ठीक। अलेक्जेंडर हुण ये बंदे ने पहला तो पर्शियंस नूं हराया, फिर ये की है जी होर अंदर वालों एंटर करता है, तो यदी जिहड़ी लड़ाई है पोरस नाल हुंदी है, किहदे नाल? पोरस नाल, ठीक है। पोरस नाल लड़ाई हुंदी है और अलेक्जेंडर जिहड़ा है पोरस नूं हरा दिंदा लड़ाई दे विच। बट अगेन पोरस बहुत चंगी तरह लड़दा है, तो अलेक्जेंडर जिहड़ा है पोरस नूं उहदा सारा एरिया वापस दे दिंदा कि उहनूं वधिया लगदा, वो कहंदा तू अपना सारा एरिया साम। और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੌਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹੈਡੇਸਪਸ। ਹਾਈਡੇਸਪਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡੇਸਪਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੇਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ फाइट ऑफ हाइडेस्पस ही फेमस है पोरस ते अलेक्जेंडर की जिहड़ी लड़ाई होंदी है, ठीक। हुण पोरस ते पोरस पर्शियन नहीं सी बेटा, पोरस का अपना ही सी इधरला ही, ठीक है। हुण की हुंदा है? लड़ाई हो गई, अलेक्जेंडर जांदा जांदा दो शहर जिहड़े है वो बसा जांदा है जेलम रिवर के कंढे ते, ठीक है। वो शहरों का नाम की है? एक हैगा जी, ये देखने पैणगे यार मैनू, निकाया, एंड सेकंड वन इज ब्यूसेफेला। ब्यूसेफेला, निकाया एंड ब्यूसेफेला। अलेक्जेंड्रिया ब्यूसेफेला क्या जाता सी, अलेक्जेंड्रिया निकाया भी क्या जाता सी, ठीक है। तो ये दो शहर ने, इन्हां नूं बसा जांदा है और अपना इथों चला जाता है। हुण देखो इन्हां दा इफेक्ट की हुंदा एंड ऑल ये करांगे, ठीक है। हुण चला जाता है जी, पोरस चला गया। इस तो बाद इंडिया दे विच जिहड़ा आंदा है जी मौर्यन एरा आंदा है, मौर्यंस, ठीक है। मौर्यन एरा आंदा है। हुण ये मौर्यन एरा की है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने वो आंदा इस दे विच अगेन 300 BC, मतलब 300 BC 4th BC के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो जगह तो मौर्यन अंपायर शुरू होंदी है। हुण जिहड़ा ये चंद्रगुप्त मौर्य है पूरे इंडिया च राज हो गया, साने उस तो कुछ नहीं लेना। जिहड़ा अलेक्जेंडर सी, जिहड़ा दो सिटीज बसा के गया सी, ठीक है, वो अलेक्जेंडर अपने एक बंदे नूं, कमांडर सी सेल्यूकस निकेटर, केड़ा सी जी, की नाम सी? सेल्यूकस निकेटर। इनू हरा के, सेल्यूकस निकेटर नू हरा के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ओह पंजाब दे एरिए नू अपने कब्जे च ले लैंदा है, ठीक है। और पंजाब दे एरिए नू कब्जे च लैके जिहड़ी मौर्यन अंपायर सी ओहदे विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिहड़ा प्रोविंस सी गंधारा रीजन, गंधार प्रोविंस सी ओहदी गंधारा, ठीक है। जिहड़ी कि तुहाडी असीं देखदे अफगानिस्तान वाला जिहड़ा एरिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान गंधार दा एरिया, ठीक। ये सारी प्रोविजन जिहड़ी एरिया सी वो किहदे अंडर सी? मौर्यन अंपायर दे अंडर। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर नू हराया और पंजाब नू जिहड़ी गंधारा प्रोविंस सी उन्हां दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਧਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਰੀਅਨਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
हाँ जी चलो ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਰੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੌਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀਅਨਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਮੌਰੀਅਨ ਏਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮੌਰੀਅਨ ਏਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗਾਸ। ਠੀਕ, ਸੁੰਗਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰਾ ਸੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ यार वैसे तो मैं नहीं लिखवाना सी, चलो पुष्यमित्रा सुंगा ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਰੀਅਨ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੌਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰਾ ਸੁੰਗਾ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੌਰੀਅਨ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੀਕਸ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਕਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿੰਗ ਮਿਲਿੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਨਾਂਡਰ, ਮਿਲਿੰਡਾ ਔਰ ਮਿਨਾਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਮਿਲਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਇਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕੋਇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲਸ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਕਾਸ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਐਰਾ ਆਂਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਸਾਕਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 5 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਵਾਸ one of the centers, one of the 5 seats of power। ਸ਼ਾਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਕਾਸ ਗਏ, ਸ਼ਾਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪਰਥੀਅਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਥੀਅਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ
आके इत्थे कब्जा किया, रहन लग गए, बिजनेस किया, कॉइन्स अपने जिहड़े है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। कॉइन्स मतलब जो अगर बिजनेस होगा तो सिक्के भी आएंगे, करेंसी यानी कि जिहड़ी पर्चियंस है इन्हां दी करंसी जिहड़ी है पंजाब दे रीजन दे विच मिलदी है। फिर इस तो बाद जिहड़ा है वो आंदे ने तुहाडे कुशन्स। ये जिहड़े कुशनस है कनिष्क, ठीक है। हुण जिहड़े कुशन्स है ये की है, इन्हां दे विचों सब तो फेमस सीगा तुहाडा कनिष्क, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ क्वेश्चन की आंदा है, ਇਹਨੇ शुरू किया सी जी तुहाडा साका एरा। साका एरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी च भी आ चुका है। कदों मतलब ये की दिखाता है 78 AD आफ्टर डेथ। मतलब हुण असी वो BC वाले एरिया चो टाइम चो निकल के AD च आ गए हैं जदों एक कनिष्का जिहड़ा है गद्दी ते बहिंदा है, ठीक है। 78 AD ये साका एरा आ गया। हुण चलो ट्राई करते हैं। साका एरा आंदा है, ये जिहड़ा एरा सी कुशनास दा एरा, ठीक है। कुशनास एरे विच जिहड़ा कनिष्का है ना, ਇਹਦੇ टाइम ते गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा आंदे हैं, गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे ਤੁਹਾਡੇ एरिया दे विच। और ये जिहड़े गोल्ड कॉइन्स है मतलब की होगा जी, ट्रेड जिहड़ा है फ्लोरिश होंदा है इस टाइम ते। हुण अगर ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है, कित्थे सी ये सारा एरिया? ये सारा पंजाब दा एरिया है। पंजाब दे एरिया दे विच ट्रेड हो रहा, देखो सब तो नेड़े एरिया सी, और जिन्ने भी किते भी ट्रेड करना सी, किते भी जाना सी, तां सब तो नेड़े तां ही पैंदा सी, ठीक है ना। इसे करके ट्रेड जिहड़ा मेन है पंजाब दे एरिया दे विच मेन ट्रेड जिहड़ा है फ्लोरिश होया स्टार्टिंग दे विच, ठीक है। ये जिहड़े साडे बाकी दे एरियाज हैगे ने ना, जे असीं कह लीए भी वैस्ट बंगाल की गल कर लो या मिडल की गल कर लो, ये जिहड़े एरियाज ने इन्हां दे कंपैरेटिवली पंजाब दा एरिया जिहड़ा सी शुरू तो ही बहुत ज़्यादा फ्लोरिश मतलब डेवलप्ड सीगा। क्लीयर। हुण अगे चलदे हां, जदों असीं इन्हां तो बाद कुशन्स तो बाद ना अगला जिहड़ा पीरियड आंदा है वो गुप्तास दा आंदा है। अगला पीरियड किहदा आंदा है? गुप्तास। हुण ये गुप्तास वो नहीं है जिहड़े कि अजकल अग्रवाल्स है, ठीक है। इन्ना क ध्यान रख लियो, ये गुप्तास अग्रवाल नहीं है। बेटा की डाटा ओवरलोड हो गया है, कली कली चीज समझा रहा है और डाटा तो ओवरलोड होना ही है। हुण जे डायनेस्टी समझनिया ने, हिस्टरी समझनी है तो थोड़ी जी कन्फ्यूजन भी होंगी है। डोंट वरी, दोबारा लेक्चर देखोगे समझ आ जाना है, ठीक है। मैं ट्राई करदा स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, ठीक। इन्ना क मैं कर सकदा तुहाडे लई। हुण देखो गुप्तास आंदे हैं। हु वाज द फाउंडर? श्री गुप्ता। ये बंदा सी जिन्हें गुप्ता डायनेस्टी नू फाउंड किया। और इन्हां दे विचों गुप्ता एरा जिहड़ा है मेन, गुप्ता एरा या साका एरा असीं पता की कहते हैं, जदों उन्हां दा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वध जांदा है, ठीक है। और जिहड़ा गुप्ता एरा है ये शुरू होंदा है 319 तो लैके 320 AD, मतलब इस टाइम ते शुरू होंदा है। और इनू शुरू कौन करदा है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन, ठीक। चंद्रगुप्त वन जिहड़ा है ये गुप्ता एरा नू शुरू करदा है। क्लीयर है। हुण यार देखो, एक मैं तुहानू होर चीज़ दसदा, घबराने की लोड़ नहीं है किसी नू भी। जे तुहानू ये नहीं याद हो रहे हुण या तुहानू कन्फ्यूजन हो रही है, डोंट वरी। PCS ने तुहानू कोई स्पैसीफिक, हाँ ये तो PCS पूछूगा तो हिस्टोरिकल एंगल तो पूछू, जिहड़ी तुसी हिस्टरी GS करनी है, पंजाब की हिस्टरी च नहीं, ठीक है। और GS की हिस्टरी तुहानू करनी पैनी है। क्लीयर। हुण जिहड़ी पंजाब की हिस्टरी है ये मैं क्यों कर रहा यार, हो सकता सी मैं ना करदा, मैं सीधा गुरुआं तो शुरू हो जांदा। क्लीयर। ये मैं तां कर रहा, मैं तुहानू ना इस दे विच कुछ एक चीज़ां दी ना रेलीवेंस समझानी है, ठीक है। तो हैव सम पेशेंस, समझ लो, कोई इशू नहीं है। नहीं भी आंदा, हुण मैं तुहानू एक तो हाले तक पिक्चर क्लीयर हो गई होनी है कि जिहड़ा साडा पंजाब दा एरिया सी, पंजाब दा रीजन सी ना,
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾਸ ਦਾ ਐਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤਾਸ ਐਰਾ ਨੂੰ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਡ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰਸ, रेड पॉलिश्ड पोट्री। आ रेड पॉलिश्ड पोट्री है ना गुप्ता एरा दी। ठीक है, ये पोट्री किथे मिलती है, सुनेत, ये सुनेत है किथे, लुधियाने, ये इंपॉर्टेंट है हुण। ठीक है, ये सुनेत जिहड़ा है कोई टाइमलाइन नहीं याद करनी, एक जिहड़ा मैं तुहानू ये दस रहा ना यार, 2 बार 3 बार करोगे तुसी देखोगे, तुसी सिर्फ फ्लो चार्ट देखना है। ठीक है, थोनू पता लगता रहू कि इस तो बाद कौन कौन आया, की इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन अपने आप ही दिखी जाती है। आप कनिष्का आया, कनिष्का हुण 78 AD की गल चल रही है, तो मतलब गुप्ता तो उदों बाद ही आए ने सारे, बस ये चीज़ां ने, टाइमलाइन की लोड़ नहीं है तुहानू। रेड पॉलिश पोट्री है किथे, सुनेत, लुधियाने दे विच। हुण इस तो बाद चलदे हैं यार, अगला जिहड़ा आंदा है वर्धनास। ये जेडे वर्धन्स है ना, वर्धनास, ये अगली डायनेस्टी है। और हुण एक इंपॉर्टेंट जेड़ा है एरिया, ये पंजाब का एक एरिया होगा जिथों और जिहदी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो देखियो। ये वर्धनास जिहड़ा एरा है, ये किने शुरू किया सी जी, पुष्यभूति, पुष्यभूति। ठीक, इन्हें शुरू किया सी कदों, 6th AD, 6th सेंचुरी AD, मतलब 500 प्लस साल जिहड़े सी। हुण देखो हौली 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 असीं अगे आ रहे हैं, 500 505 510 मतलब 6th जिहड़ी है सेंचुरी उहदे विच आ गए हैं। हुण आ देखो ये जिहड़े वर्धनास सी ना, ये सीगे इन्हां दा थानेश्वर, इन्हां दी कैपिटल की सी, थानेश्वर। ये थानेश्वर की है, अज दा कुरुक्षेत्र दा एरिया। हरियाणे दे विच जिहड़ा कुरुक्षेत्र दा एरिया है, ये कुरुक्षेत्र दा एरिया वर्धनास दी की सी राजधानी। हरियाणे का तो नहीं सी वो, पहला वो तो पंजाब का ही एरिया सी, है ना। तो इत्थों कुछ समझ आ रहा कि ये वर्धनास जिहड़े सी कि मतलब साडे पंजाब दे विच ही राजे होए ने, पंजाब दे ही राजे सी। और हुण देखो इन्हां वर्धना दे विचों सब तो जिहड़ा फेमस सी हर्षवर्धना। आ बंदा सी जिहड़ा सब तो फेमस सी, और ये 606 आफ्टर डेथ AD दे विच गद्दी ते बहिंदा है। ये 606 AD दे विच गद्दी दे उत्ते बहिंदा है। और हुण एक इंपॉर्टेंट जिहड़ा है एरिया, ओहदी गल होगी, दैट इज एक पर्सन सी, चाइनीज सी। ठीक है, और चाइनीज की नाम सीगा उसका, ह्यून सांग। चाइनीज सी, ट्रैवलर सी, और इंडिया की हिस्टरी दे विच सब तो वन ऑफ द फेमस जिहड़ा ट्रैवलर रहा ह्यून सांग। ये रहा इन्हां लोकां करके ही बुद्धिज्म जिहड़ा है इंडिया तो बाहर जिहड़ा सी कह दिंदे मेनली। ठीक है, ये रिसर्चर सी जिहड़े लोग इत्थे आए
बुद्धिज्म ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ पूरे इंडिया का मतलब गैंजेटिक वैली है ना जी उपर नीचे नहीं गया है, साउथ वाल नहीं गया, जेड़ा साडा उपरला एरिया है ये पंजाब यूपी बिहार हरियाणा मतलब ये सारा एरिया ने गाया और इन्हें अपने ट्रैवल अकाउंट्स दे विच एक जगह का नाम लिया वो हैगी तुहाडी सरहिंद। ये सरहिंद का जिहड़ा इलाका है सरहंद का इलाका, अरे यार अगर मैं तुहानूं दसा ना इत्थे मैप ही है नहीं, चलो ये सरहंद का इलाका एक इहो जिहा इलाका है शुरू तो लैके जिहड़ा पहाड़ां नाल लगदा है। असीं देखिया सी ना, अगर चलो मैं इसे मैप ते समझाना फॉर द टाइम बीइंग है ना, अपने कोल दूजा मैप नहीं है तां की है आला एरिया किहदे नाल लगदा ये एरिया किहदे नाल लग रहा जी, ये एरिया तुहाडा पहाड़ी एरिया दे नाल लगदा है, हिमाचल दे नाल लगदा है। हिमाचल अगे देख लो की है, तां है कि ये सरहंद का इलाका जिहड़ा है ये पहाड़ी एरिए दे नाल लगन करके मेन एंशियंट टाइम मिडीवियल टाइम दे विच ये इलाका हमलावरां वास्ते भी मेन इलाका सी और जिहड़ा ट्रेड हुंदा सी ट्रेड वो भी मेनली ये इलाके तो हुंदा सी। सरहंद का जिहड़ा इलाका है ये इलाका ट्रेड वास्ते सब तो वध फेमस सी पुराने समय दे विच और यही इलाका है जिहदे विच अगे इत्थों शुरू हो जाता है तुहाडा सरहंद का एक ह्यून सांग जिहड़ा एडा फेमस ट्रैवलर सी उन्हें अपने ट्रैवल अकाउंट दे विच सरहंद दे बिजनेस की गल की है कि वो किहड़ी जगह सी पहाड़ों के नाल लगदा सी। इत्थों सारे पहाड़ा जितना भी असी कह रहे हैं चाइना कनी एंड ऑल या जिन्ना भी तुहाडा समान जाना सी वो सारा इस एरिए दे विच होके लंघदा सी। ठीक है, तो सरहंद जिहड़ा है बहुत ही पुराना जिहड़ा तुहाडा है, देखो 606 जी असी गल कर रहे हैं उन्हां दिनां दे विच सरहंद जिहड़ा सी फेमस एरिया सी, बहुत फेमस एरिया सी। ठीक है, और अज सानू सरहंद जमा नहीं दिखता क्योंकि तुहानू पता हिस्टोरिकली की होया बंदा सिंह बहादुर एंड ऑल, वो असी बाद विच गल करांगे। पर किसी टाइम दे विच ये सरहंद बहुत ही फेमस सी। इहने तां ह्यून सांग ने तां सिर्फ और सिर्फ की गल की है कि ये एरिया ट्रेड वास्ते बहुत फेमस सी, फ्लोरिश सी और क्योंकि ये एरिया पहाड़ों के नाल लगदा सी इस करके इत्थे लोग बहुत ज्यादा बसे हुए सी। ठीक, हुण सुनो अगे। हिल्स बेटा ऑब्स्टैकल नहीं पैदा करते, हिल्स ऑब्स्टैकल की पैदा करनी है, थोड़ा रास्ता ही जिहड़ा जान नूं है वो की है तुहाडा सारा रस्ते जिथे भी तुसीं जाना है तुसीं इन्हां दे विच दी होके जाना है। ठीक है, पासिस हुंदे आ तां उत्थों दी होके जाना है। तां पुराने टाइमां च जिहड़ा सरहंद सी वो एक बहुत ही फेमस एरिया सी ट्रेड परपस तो। हुण देखो आ जिहड़ा वर्धनाज है इन्हां तो बाद यार अगली डायनेस्टी आंदी है, वो केड़ी डायनेस्टी है जी, हिंदू शाही, हिंदू शाही डायनेस्टी है। ये जिहड़ी डायनेस्टी है राजा जयपाल, राजा जयपाल सी, राजा जयपाल ने यह डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी जिहड़ी है इनू एस्टैबलिश किया। हुण ये जिहड़ा बंदा सी इहदी अंपायर जिहड़ी सी सरहिंद तो लैके इन्हें अपनी अंपायर कित्थे तक फैलाई हुई सी, अफगानिस्तान तक। सरहंद तो लैके अफगानिस्तान तक दी एदी सारी अंपायर इन्हें एस्टैबलिश की हुई सी। किने? राजा जयपाल ने। ठीक है, हुण बार बार सरहंद आऊगा। ये राजा जिहड़ा जयपाल है, हुण तुहानूं एक होर एरिए का कंटैक्ट समझ आऊगा शायद, वो की है बठिंडा। बठिंडे का किला है ना, हैगा किला देखिए
हिस्टोरिकल किला है, बहुत पुराना किला है, ठीक है, बहुत पुराना किला है बठिंडे का। ठीक, हुण उत्थे गल करदे आ, ये जिहड़ा राजा जयपाल सी ना, इहदी पहला कैपिटल की सी, बठिंडा सी। बठिंडा कैपिटल तो इन्हें कैपिटल कित्थे शिफ्ट करती जी, सरहिंद दे विच शिफ्ट करती। बठिंडा इहदी कैपिटल हुंदी सी, बठिंडे तो यह बंदा सरहंद तक अपनी कैपिटल ले आया। कहण दा मतलब की होया, आ बठिंडा ते आ सरहंद, ये दोने ही हिस्टोरिकल प्लेसिस है, पुराने शहर ने, पुराने पॉलिटिकली मिलिट्री इंपॉर्टेंट शहर ने, ठीक है, मिलिट्रिकली और पॉलिटिकली दोने परस्पेक्टिव्स तो ये शहर पुराने इंपॉर्टेंट ने। ठीक, हुण देखो, हुण जिहड़ा इहदा राजा जयपाल सी, इहनूं की होया जी, महमूद गजनवी, ठीक है, ये महमूद गजनवी है जिन्हें ये तुहाडा राजा जयपाल का जिहड़ा पूरा सिस्टम सी हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक, इनू डिस्ट्रॉय करता। किहड़ा? महमूद गजनवी। हुण कोई इशू नहीं है, हिंदू शाही डायनेस्टी साडी खत्म होंदी है, पर एक चीज का ध्यान रख लो, हुण जिहड़ा पूरी कहानी दस्सण दा जिहड़ा मेरा रीजन सी, ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं सी भी तुहानू ये सारा कुछ दसां, कौन कदों आया, ये तुहाडा हिस्टरी का पार्ट है। मैं अपना एक लैक्चर ये खराब नहीं करना सी, खराब नहीं मैं बोलूँगा, ता डिस्कस किया कि आ जिहड़े दो ने ना, बठिंडा ते सरहंद, इन्हां दी रेलीवेंस दस पाइए। हुण देखो यार, हिंदू शाही डायनेस्टी खत्म होंदी है और इहदी जगह ते ਇਹ खाली जगह ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ। क्योंकि महमूद गजनवी जिहड़ा है, इन्हें हिंदू शाही डायनेस्टी खत्म करती। हुण हिंदू शाही डायनेस्टी दे विच कैपिटल किहड़ी सी? पहला बठिंडा ते सरहिंद। तां इन्हां ने की कीता? बठिंडा एंड सरहिंद इन्हां नूं मिलिट्री एरियाज बनाता, मिलिट्री कंटोनमेंट एरियाज। राजपूत दे टाइम दे उत्ते किहड़े सी जी? बठिंडा ते सरहंद, ये दो एरिया सी जिन्हां नूं राजपूत ने अपने टाइम दे उत्ते मिलिट्री कंटोनमेंट एरियाज बनाते सी, ठीक है। बठिंडा क्यों? इहदी राजधानी सी, ते आ दोने एज इट इज कैप्चर करके राजपूत ने। क्यों? राजपूत की सीगे, राजपूत ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और उन्होंने दिख रहा सी कि अगर पंजाब का रीजन खाली हो गया तो सीधा उस तो बाद राजस्थान च एंटर करना है मुसलमानों ने। तो उन्होंने की किया? दिल्ली तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के, ठीक है, क्यों उदों तक कोई मतलब कोई मुसलमान सीगा ही नहीं उस एरिया उस टाइम ते। उस टाइम के उत्ते कोई मुस्लिम लीडर, कोई मुस्लिम डायनेस्टी एंड ऑल पंजाब दे विच, इंडिया दे विच नहीं आई सी। पहली चीज का ध्यान रख लियो, कोई मुगल नहीं सी, कुछ नहीं सी। हुण की हुंदा? उन्होंने बठिंडा और सरहंद इन्हां नूं मिलिट्री कंटोनमेंट एरियाज बनाता। हुण ये किहड़े सी? ये चौहान सीगे। किथे रूल करते सी? ये मेनली अजमेर ते। अजमेर के रूलर सीगे, इन्होंने बठिंडा दिल्ली तक इन्फ्लुएंस बढ़ाया, उस तो बाद कितने तक आ गए ये? पंजाब के रीजन तक। और फिर इन्हों का जिहड़ा मेन सी वो किहड़े सीगे जी? पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान है, हिस्टोरिकल फिगर है इंडिया की, और इनू सब तो तगड़ा असी वैरियर मानते हैं किहड़ा? अगर असी इंडिया हिंदू डायनेस्टी का देखते हैं, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी का। इन्हां दे नाल किहड़ी होई जी? एक बैटल ऑफ टेरेन। ये इंपॉर्टेंट है जी, बैटल ऑफ टेरेन। ये कदों होंदी है जी? 1192 एडी दे विच। 1192 एडी दे विच ये की है? तुहाडी बैटल ऑफ टेरेन है। हुण ये जिहड़ी लड़ाई है बैटल ऑफ टेरेन, ये वो लड़ाई है जिन्हें इंडिया दे विच पहली बार
ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਔਰ बैटल ऑफ टेरेन होंगी है। हुण राजपूत किंगडम खत्म हो चुके जी। ठीक है, लास्ट जेड़ा किंगडम है इंडिया का हिंदूशाही जेड़ा सी हिंदू किंगडम कह रहे हैं वो खत्म हो चुका है। हुण मुहम्मद गौरी जेड़ा है इंडिया दे विच काबज हो चुके हैं। ठीक, हुण ये जेड़ा मुहम्मद गौरी है ये बंदा अगे जाके मुहम्मद गौरी वापिस जाता है और वापिस जान तो पहला ये अपना एक परसन एक कमांडर जिहड़ा है वो कमांडर नू इंडिया दी कमान संभाल जाता है। ठीक, हुण तक यार आ चीज तुहाडे दिमाग च फिट हो जानी चाहिए है कि बठिंडा ते सरहंद जिहड़े है ये किन्ने के इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली साडे लई। ठीक, आ चीज ठीक, हुण की है ये खत्म, इत्थे तक सारा तुहाडा की है एंशियंट जिहड़ी हिस्टरी है ओदी असीं गल करदे हां। अच्छा चलो यार एवें करदे हां। राजा जयपाल ओके क्लीयर होया यार सारिਆਂ ਨੂੰ जो अज अपने हाले तक डिस्कस किया है, दसो मैनू। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक काम करो मिडीवल हिस्टरी ना अज नहीं शुरू करना। रीजन की है मेरे को तो सारा कुछ पे है बट मैनू की है जेड़ा कि कुछ एक स्टूडेंट्स भी ने जेड़े कह रहे हैं कि सर ओवरलोडिंग हो गई है एंड ऑल, थोड़ा जा शिफ्ट किया ना तो हुण हिस्टरी जिहड़ी है हिस्टरी दे विच इनफॉर्मेशन ओवरलोड हुंदा ही हुंदा। ठीक, तो एक काम करो चलो ठीक है यार अगे नहीं करवा रहा अज। अज ना यही है टॉपिक जिहड़ा है इत्थे तक तुहानूं कवर हो गया। मिडीवियल कोई इशू नहीं है यार। ठीक है, मैं एक दो दिन फालतू ले लूँगा, आपां कोई वहम नहीं है बट इन्ना कह कि इनू ना पिक्चर क्रिएट करते जाओ। बस अज का जिहड़ा परपस सी मेन वो की है बठिंडे ते जिहड़ा सरहंद है इहदी तुहाडी रेलीवेंस जिहड़ी है वो क्लीयर होनी चाहिए है। हुण इस तो बाद जो मिडीवियल हिस्टरी देखांगे ना तो मिडीवियल हिस्टरी दे विच देखांगे कि क्यों सरहंद की इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वध गई मिडीवल हिस्टरी दे विच कि लास्ट वाली जो लड़ाइयां भी ने वजीर खान एंड ऑल ये सारे जोड़े। ठीक है ना, कि सरहंद एडी इंपॉर्टेंट सीट किवें बन गई सी। ठीक, वो उत्ते गल होगी मिडीवल दे विच बट कोई इशू नहीं है यार। बट इन्ना ट्राई करो क्योंकि जो हम मैं मिडीवियल करवाऊंगा ना तो मिडीवियल के नाल ही मिडीवियल दे विच बहुत ब्रॉडर है। मिडीवियल दे विच असीं की गल करांगे सारी जिहड़ी तुहाडी मुस्लिम डायनेस्टीज हैगियां ने। ठीक, दिल्ली सल्तनट्स एंड मुस्लिम्स जिन्ने भी तुहाडे उन्हां दी गल करन तो बाद गुरु जिहड़े हैगे ने वो भी नाल दी नाल स्टार्ट होने। ठीक है ना, तो उन्नी ओवरलोडिंग लई रेडी रहो तो फिलहाल जिहड़ा है इहनूं समझण दी कोशिश करो और एक लिख लो एक ऐड करनियां ने चीज़ां। बेटा कोई गल नहीं अगर नहीं कर सके जे 9 तहसील नहीं पता चलदियां तो पंजाब गवर्नमेंट की कोई साइट पर खोल लो। अगर फिर भी नहीं पता चलता तुहाडे कोल किताब पहुंच जूगी उहदे विच देख लो सारा कुछ मिलता उत्थे। ठीक है, टेंशन ना लो। हुण देखो यार मैं एक दो चीज़ां लिखवानियां ने वो लिख लो जिहड़ी असीं गल कीती है ना पैलियोलिथिक साइट्स पैलियोलिथिक जिहड़ा एरा की गल कीती है।
बेटा डिवीजनस की है, डिवीजन ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ 22 ਦੀਆਂ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 मतलब एक डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4-4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਫॉर एग्जांपल कि यार एक डिवीजन बनाती एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये पूरी के पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट जो भी डेवलपमेंट होनी है, जो भी चेंजेस होने हैं एंड ऑल जो भी इत्थे दा रेखा जोखा है वो एक डिवीजन संभालेगी, ठीक। वो डिवीजन 5 बनाती, वो है तुहाडियां डिवीजन्स। हुण देखो यार, चलो आपने लिखना की है, पैलियोलिथिक साइट्स की गल कर रहे हैं। पैलियोलिथिक जिहड़ा है सब तो पहला तो मैं तुहानूं दस ही दिता है ना, हुण तां इहदे विच कोई गल ही नहीं तुहानूं याद करने वाली, कोई सैटलमेंट नहीं, कोई एग्रीकल्चर नहीं, ठीक है। बांदर तो बंदा बन रहा हाले, ठीक। और कोई भी असी कुछ नहीं यूज कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पत्थर है साडे कोले। और जिहड़ियां ये पैलियोलिथिक साइट्स है, ये देखो पंजाब च कित्थे कित्थे मिलदियां ने, ठीक है। वो लिख लो, पैलियोलिथिक जिहड़ियां साइट्स है पंजाब दे विच मिलदियां ने, वो हुशियारपुर, दौलतपुरा, होशियारपुर है, दौलतपुरा, धेर माजरा, धेर DHER माजरा, सब तो पहला होशियारपुर है, दौलतपुरा, धेर माजरा, धांग DHANG धांग है, ठीक है। उस तो बाद नालागढ़ है, नालागढ़, सिरसा, पिरथन PIRTHAN पिरथन ते रामपुर, रामपुरा ये जिहड़ियां साइट्स है इन्हां दे उत्ते तां मिलदा है तुहाडियां पैलियोलिथिक एरा दे जिन्नियां भी कुछ भी ठीक है, कुछ भी माने मोटे टूल्स एंड ऑल उन्हां दी कार्बन डेटिंग की जाती है, उस तो पता लगता है कि किहड़े हैगे है, ठीक है। हुण की है पैलियोलिथिक, उस तो बाद आने मेजोलिथिक। मेजोलिथिक एरा दी कोई भी सिंगल साइट जिहड़ी है पंजाब च नहीं मिलती। मेजोलिथिक एरा दी कोई भी सिंगल साइट पंजाब दे विच अवेलेबल नहीं है, क्लियर। उस तो बाद आंदा नियोलिथिक। नियोलिथिक जिहड़ी है, नियोलिथिक नियोलिथिक जिहड़ा है रोड डिब्बर, रोड एंड डिब्बर, ये ब्यास वैली है, ब्यास रिवर की जिहड़ी वैली है ना, ब्यास वैली दे विच ये रोड डिब्बर जिहड़ा एरिया है, ठीक। उत्थे तुहानूं पैलियोलिथिक जिहड़ी साइट्स है, मतलब जिहड़ी नवीं जिहड़ी 3rd जनरेशन की साइट, नियोलिथिक सॉरी नॉट पैलियोलिथिक, ठीक है। वो नियोलिथिक साइट जिहड़ी हैगियां ने उत्थे मिलदा है। हुण अगे असीं आ गए सी यार, मैं तुहानूं दस्सिआ इस तो बाद मैटल एज आ जाती है। मैटल एज दे विच वो जिहड़ा बनाया सी ना, उहदे विच जित तक मैनूं लगदा मैं दस ही दित्ता सी, सब तो पहला तो ना मड हाउसिस, जिहड़े मड हाउस है वो बनन लग गए सी, मिट्टी के घर बनाने लग गए सी, ठीक है। क्योंकि सैटलमेंट्स अकल आ रही सी कि हौली हौली तो परमानेंट सैटलमेंट्स चाहिए सी, परमानेंट। हुण पहला घाह फूस दे पैलियोलिथिक च बना, नियोलिथिक च घाह फूस दे घर सी, हुण असीं मड हाउसिस ते आ गए सी, ठीक है ना। हुण मड हाउसिस दे नाल हैंडमेड पोटरी जिहड़ी है, ठीक है, समान धरन लई। हुण क्यों एग्रीकल्चर सी तां एग्रीकल्चर लई सानू समान भी सामना सी, जिहड़ी साडी प्रोड्यूस हुई है, जिहड़ी फसल बनी है, उहदे लई जिहड़ा है समान हैंडमेड जिहड़ियां चीज़ां ने, ठीक है, भांडे, हैंडमेड पोटरी एंड ऑल, ये सारा कुछ बनन लग गया सी। उस तो बाद की है जी व्हील कार्ट। व्हील कार्ट ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब मैटल एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ व्हील कार्ट ਬਣਦਾ ਹੈ, क्लियर। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਲਿਖੋ इंडस वैली ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, इंडस वैली ਸਾਈਟਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। इंडस वैली साइट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। लोथल LOTHAL, लोथल ये कित्थे है जी, गुजरात दे विच है।
ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾ, ਕਾਲੀ ਬੰਗਾ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬਾਨਾਵਾਲੀ, ਬਾਨਾਵਾਲੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰਕੋਤਾੜਾ, ਸੁਰਕੋਤਾੜਾ ਇਹ ਅਗੇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੰਗਪੁਰ, रंगपुर अगेन गुजरात दे विच है। आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी दे विच है। बस ये जिहड़ियां है ये तो उन्हें जगह इंडिया दे विच जिथे की है तुहाडी इंडस वैली साइट्स मिलदियां ने, ठीक है। हुण पंजाब दे विच थोड़े तो क्वेश्चन आऊगा, मेनली तो उन्होंने कंटैक्स्ट की है कि पंजाब च कित्थे मिलदियां ने, है ना। जानना तो यही जरूरी है कि पंजाब दे विच किहड़े रीजन दे विच तुहाडियां इंडस वैली साइट्स मिलदियां ने। तो पीसीएस दे विच तां ना यार जिथे तक मैं मन के चलदा है, इहनूं पक्का जिहा मन के चलो क्वेश्चन नूं इंडस वैली साइट्स दा, चाहे इंडिया दे विच पुछ लण चाहे वह पंजाब दे विच पुछ लण। पंजाब दे विच कित्थे है जी? रूपनगर, रोपड़ जिहड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच वन ऑफ द जिहड़ी फेमस सिटी सी, ठीक है, रोपड़ वन ऑफ द मेन फ्लोरिशिंग सेंटर जिहड़ा है वो तुहाडा रोपड़ दा एरिया सी, रूपनगर जिहनूं कहंदे हो, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दा एरिया सी। उस तो बाद कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान, धेर माजरा, धेर माजरा अगेन रोपड़ डिस्ट्रिक्ट दे विच है, ठीक है। रोपड़ लुधियाना बस यही एरिया जिहड़े हैगे ने वो रहूगा। 12 अगेन रोपड़ दे विच है। उस तो बाद राहीरा, रोहीरा या राहीरा अहमदगढ़ है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पैंदा अहमदगढ़, ठीक है, वो है रोहीरा। और ये बड़ा ये जगह बहुत फेमस है, ठीक है। अगे पता लगू जो मिडीवियल हिस्टरी करांगे, ये रोहीरा का जिहड़ा एरिया है ये बड़ा फेमस है अहमदगढ़ का। संघोल, फतेहगढ़, संघोल जिहड़ा है फतेहगढ़ साहब है। सुनेत लुधियाना, लुधियाना किसी लोधियाना, ठीक है, लोधियाना, लोधी डायनेस्टी नाल इहदा लिंक है और उत्थों बन गया है लुधियाना, ठीक। ये साइट्स जिहड़ियां हैं ये इंपॉर्टेंट है यार तुहाडे लई। और बाकी आपने मैं तुहानूं लिखवाई दिता, कोई इशू नहीं है। लेट मी चेक, मैं देखदा कुछ अगर मैनूं लग्या कि तुहाडे नाल कुछ होर शेयर करन दी लोड़ है कुछ ग्रुप दे विच एंड ऑल, तो मैं वो भी शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अगर मैनूं लगदा, अगर नहीं लगदा तो कोई इशू नहीं है, नहीं लगूगा तो मतलब तुहाडे कोल सारी चीज़ां पहुंचियां हुई ने, ठीक है। तो पंजाब दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है, इंडिया दे विच साइट्स ए ने, ये प्री दा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अज जिहड़ा असीं देखिया, अज असीं जिहड़ी डिस्कशन कीती है वो होया हाले तक एंशिएंट कि किवें सारा कुछ डेवलप हुंदा 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 असीं मिडीवियल तक पहुंचते हैं, ठीक है। हुण इस तो बाद कल नूं या मतलब नैक्सट क्लास अपनी मंडे दी है, मिडीवियल हिस्टरी स्टार्ट करांगे और मिडीवियल नूं कंटिन्यू करांगे। मिडीवियल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मिडीवियल ही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पोर्शन असीं मनदे हैं ना तो वो मिडीवियल हिस्टरी का है, ठीक। ये सिर्फ एंशिएंट का मैं तुहानूं बार बार दस रहा, मेरा मतलब ही तुहानूं सिर्फ तुहाडे निगाह पवानी कि सरहंद ते जिहड़ा बठिंडा है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूरी मिडीवियल हिस्टरी दे विच इन्हां दे नाल ही रिलेटेड गल्लां होणीआं ने अगे, ठीक। चलो इहदे नाल ही अज दा जिहड़ा सैशन है ये खत्म हुंदा, वाइंड अप करदा। और ये दस दो यार समझ आ गया जो अज असीं डिस्कस कीता है? ओके,
जे किसी दे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एक सेकेंड। हाँ जी। ਹੈਲੋ हेलो ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? यार सोन वैली चलो गल सुनो। ਹਾਂਜੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੱਥ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਜ਼ੋਲੈਥਿਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਜ਼ੋਲੈਥਿਕ ਐਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਯਸ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ PDF ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਰ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਸ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਸੈਪੀਆ ਪੀਪਲ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਐਂਡ ਆਲ, ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਇਨਸ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਨਸ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਟਾਈਗਰ ਵੀ, ਲੈਪਰਡ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਬਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨ ਬਚੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਘਬਰਾਊਗਾ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਊਂਗਾ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ। हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।
ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਸੋਇਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸੈਰੋਜ਼ਨ ਸੋਇਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਇਲ? ਦੱਸ ਦੇ 25% ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਵੈਸੇ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੋਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਮ ਸੋਇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਮ ਸੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ PDF ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਨੇ? ਸੌਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਨੇ PDF? ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਰੀਜਨ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ SS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼। ਓਕੇ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ओके चलो यार। रमनीत कौर, हाँ जी रमनीत। Good evening, sir. Very good evening. Sir, actually, I'm confused about one topic of yesterday's class. Yes. We have talked about saline soil, na? Yes. And its pH is 7.3 to 8.2. Yes. It is basic, but consider. What I said कि देखो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਇਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਨ ਸੋਇਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਪਿਲਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਓਕੇ ਸਰ। ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੋਇਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਲਾਈਨ ਸੋਇਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰ ਇਰੀਗੇਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਓਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਬਲ ਸਾਲਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, that is why it is known as saline soils. Okay sir, thank you. Welcome. Okay, चलो। So ਆਪਾਂ देखो यार, अमित कंसल का एक क्वेश्चन है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व। देखो बेटा, कंजर्वेशन रिजर्व जेडे है पर्पस दोनों का सेम है, रिजर्व है। ठीक है ना? कंजर्वेशन रिजर्व जेडे है गवर्नमेंट दी लैंड है, वो गवर्नमेंट अपनी लैंड दे उत्ते ठीक रिजर्व डिक्लेयर कर दिंदी है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व की हुंदा है? कम्युनिटी रिजर्व दे विच पिंड दी थां है, पिंड के लोगों नाल डिस्कशन तो बाद एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी दे विच पिंड दे लोग भी शामिल ने ते गवर्नमेंट भी शामिल है। ठीक है ना? हुण उत्थे की है, वो जिहड़ी जगह है दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिजर्व, क्योंकि वो जगह कम्युनिटी दी है। पर वंस इट इज डिक्लेयर्ड एज अ कम्युनिटी रिजर्व, हुण उस दे विच कोई भी फेर बदल पिंड दे लोग नहीं कर सकते विदाउट कमेटीज अप्रूवल।
not government's approval, without committee's approval, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। this is called community reserve। चलिए, so with this we are winding today's session and Monday मिलते हैं यार। और Monday ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ that would be from 5:30 to 8, ठीक है। 2.5 घंटे की क्लास होनी है और थोड़ा जिहा चंगी तरह कवर हो जाएंगे। और इसका ना एक रीजन है यार, मैं तुहानूं दस रहा, मैनूं सर ने कहा सी कि कुछ एक बच्चों की क्वेरीज आ रही सीगियां इस दे विच, है ना। की है कि यार कुछ नहीं पता, PCS का हाले पेपर की डेट नहीं आई, कदों भी डिक्लेयर हो सकता है। क्लीयर। हुण असी नहीं चाहते कि आपां हौली हौली करके सिर्फ और सिर्फ की करिए जो तक पेपर आ जाए उदों तक हाले साडा सिलेबस ही कंप्लीट होया होवे। असी चाहते हैं कि तुहाडा सिलेबस तरीके नाल तमीज़ नाल असी पहला कवर कर लीए सारा, ताकि अपने कोले रिवीजन का भी टाइम होवे, तां ही असी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हो। इसे करके जी क्लास का टाइम है 2 घंटे तो बढ़ा के 2.5 घंटे किया गया। सोनू तो ज़्यादा मिल रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ियां सेम रहनियां ने, बल्कि सोनू नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा मिल रहा है, तो अपन तो फायदा है ना। हुण जिवें अज तुसीं थक गए हो, हाले अगर टाइम देखिए 15-10 मिनट पए है क्लास के, है ना। और मैं सोनू की कहा 8 बजे तो बाद थोड़ी क्वेरीज लूँगा, बट ठीक है अज का हैवी सीगा थोड़ा टॉपिक, बट बी प्रिपेयर्ड। अपने दिमाग नूं खोलो यार और अपना इन्ना तो रखो कि शाम को अगर पढ़ना तो 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो, ठीक। तो कोई इशू नहीं है। मंडे ऑनवर्ड्स 5:30 to 8 है, ठीक है। और क्लास जी है 2.5 घंटे के विच असी चंगी तरह हिस्टरी के टॉपिक डिस्कस करांगे, मिडीवल हिस्टरी। और ये जी मिडीवल हिस्टरी है हुण असी कह दें कि पूरी पंजाब रिलेटेड जी हिस्टरी है वो शुरू होती है साडी मिडीवल तो। क्लीयर। सो विद दिस गुड नाइट, मंडे मिलते हैं दोबारा। और उदों तक अपना चंगी तरह पढ़ो और किसी को कोई भी डाउट है, कोई इशू है तो मेरे नाल गल करो, ठीक है। वो सारे डाउट एंड इशूज क्लीयर किए जाएंगे।